morning, students. We read today about vegetative reproduction. Vegetative reproduction, it is a type of reproduction in which a vegetative part like leaf, stem, root convert into fully developed plant, then it is known as vegetative reproduction. What is the mean? अगर कोई प्लांट का कोई भी पार्ट लाइक स्टेम, लाइक रूट, लाइक लीफ, एनी पार्ट एक्सेप्ट सेक्स ऑर्गन और गैमेट कन्वर्ट्स हो जाए किसमें, फुली डेवलप्ड प्लांट में, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. नेचुरल, जो कि नेचुरल तरीके से होता है, और मैन मेड तरीके से होता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल. हाउ द नेचुरल प्रोसेस टेक प्लेस? नेचुरल प्रोसेस होता है बाय लीफ, बाय स्टेम, बाय रूट, बाय जनरेटिव स्ट्रक्चर्स. बाय लीफ, डू यू नो about bryophyllum? Bryophyllum is the good example of vegetative reproduction by leaf, because bryophyllum contains axillary buds. So after the leaf in contact of soil, it convert into fully developed plant. मतलब किसी भी bryophyllum leaf को यदि आप जमीन में डाल दें, ग्राउंड अंडरग्राउंड कर दें, तो उससे नया प्लांट बन सकता है. तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बाय लीफ? ब्रायोफिलम. बाय स्टेम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेम. अंडरग्राउंड, इट मींस जो जमीन से नीचे हो. सब एरियल, जो आधे जमीन में हो, आधे जमीन से ऊपर हो. अंडरग्राउंड, द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड इज ट्यूबर. Tuber, do you know potato? This is potato. These are axillary buds. We know also it are eye. जब भी इन आईज को कट करके अंडरग्राउंड डाल देते हैं तो न्यू पोटैटो प्लांट डेवलप हो जाता है. बल्ब, गुड एग्जांपल ऑफ बल्ब. अनियन, गार्लिक. बल्ब का अच्छा एग्जाम्पल क्या है? लहसुन, प्याज. राइजोम, व्हाट आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ राइजोम? फर्स्ट जिंजर, सेकंड टर्मरिक, थर्ड बनाना. अगेन आई रिपीट, केला. सेकंड हल्दी, थर्ड अदरक. नाउ कॉर्न. Colocasia, it is also type of underground. Colocasia, it means Arabi. So by stem, underground stem, there are four types of underground stem: tuber, bulb, rhizome, and corm. Example of tuber, potato. Example of bulb, ginger. Bulb का example है garlic and onion. राइजोम के एग्जाम्पल्स हैं बनाना, जिंजर, टर्मरिक. और कॉर्न का एग्जाम्पल है कोलिकेसिया. सब एरियल, रनर जस्ट लाइक ग्रास. ऑफसेट का एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ, पिस्टिया. वाटर हाइसिंथ इज आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल. व्हाई? बिकॉज इट इज ए डेकोरेटिव प्लांट. एंड डेकोरेटिव प्लांट का मतलब क्या हुआ? इसका फ्लावर बहुत डेकोरेटिव होता है. तो whenever we grow in a aquatic condition, it grow fastly because it shows very fastly vegetative reproduction. तो ये जो आइकोनिया है, ये जो वाटर हाइसिंथ है, जलकुंभी है, ये फास्टली ग्रो हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन which found inside the aquatic condition dissolved or absorbed by water hyacinth. वाटर हाइसिंथ के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. तो लैक क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू लैक क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, all the aquatic animals will die. So it is known as terror of Bengal.
stolen. Just like example, what are the example of stolen? Just like strawberry. So these are types of by stem, by root. Just like example, sweet potato. By generative structure, just like agave cells. agave में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर whenever female reproductive structure contact with soil, then it converts into fully developed plant. Vegetative reproduction also apply by artificial way, cutting, grafting, layering, Guti method. These are some artificial methods by which we can apply vegetative reproduction. Remember that seedless plant developed by this process. This process is very cheap, so it is very popular. Old tissue culture method applied by this process. Now we take differences between in these structures: zoospores and zygote, menstrual cycle and ostrich cycle, gametogenesis and embryogenesis, monoecious and dioecious. First, zoospore and zygote. Zoospore, it is haploid or diploid structure, but zygote is always diploid structure. Why? Because zoospore is formed after the mitosis process, but zygote formed after the fertilization process. Zoospore is a pre-fertilization stage and zygote is after fertilization stage. Zoospore always motile. What means of motile? Motile का मतलब क्या है? Motile का मतलब है किसी भी गैमेट के पास अगर फ्लैजिला है तो वो क्या हो गया? मोटाइल. तो zoospore always in found in motile form और zygote नॉन मोटाइल. ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं menstrual cycle and ostrich cycle, MC and OC. Menstrual cycle found in primates and ostrich cycle found in non-primates. What means of primates? Just like apes, just like human beings. This cycle occurs due to less secretion of progesterone. Ostrich cycle is take place or occurs because excess secretion of estrogen. What is the duration of menstrual cycle? 3 to 7 days, and it repeat after 28 days. And ostrich cycle once or twice in a year. During menstruation cycle, blood, mucus and other excess wastage material releases through the vagina. Vagina से क्या क्या निकलता है? ब्लड निकलता है, म्यूकस निकलता है, पर ओस्टिस साइकिल में ब्लड का कोई रिलीजेशन नहीं होता. तो क्या डिफरेंस हुआ मैन डिफरेंस हुआ कि मेंस्ट्रुएशन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से हो रहा है और ओस्टिस साइकिल किसकी वजह से हो रहा है? एस्ट्रोजन की एक्सेस की वजह से. ये प्राइमेट्स में होता है, वो नॉन प्राइमेट्स में होता है. इसका ड्यूरेशन है 28 दिन के बाद रिपीटिशन होता है. उसको साल में 1 या 2 बार देखा जा सकता है, वंस इन ए ईयर. जैसे एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, काउ, बफेलो, 2 इन ईयर. तो 2 में एग्जांपल होगा आपका बिच है, जैसे डॉग, कैट, गोट. और exceptionally ostrich cycle found in polyostrich cycle just like guinea pig and mice. These are exception. Mice and guinea pig. Exception. Why? Because they have polyostrich cycle. अब हम पढ़ रहे हैं gametogenesis और embryogenesis. Gametogenesis is a process in which gametes are formed in primary sex organ, while embryogenesis is a process in which
embryo is formed. Gametogenesis take place in primary sex organ. Embryogenesis process is take place in uterus. During gametogenesis process, haploid structures, it means gametes are formed, and during embryogenesis, 2 and diploid structure form. गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो बनता है वो गैमेट्स बनते हैं, वो मोटाइल भी हो सकते हैं जस्ट लाइक मेल, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं जस्ट लाइक फीमेल, बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस हमेशा नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर बनती है। दोबारा लीजिए क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट्स का बनना, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है एम्ब्रियो का बनना। गैमेटोजेनेसिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है, जबकि एम्ब्रियोजेनेसिस यूट्रस में होता है। गैमेटोजेनेसिस में जो स्ट्रक्चर बनेंगी वो हैप्लॉइड होंगी और वो मोटाइल हो सकती, यानी घूमने वाली, नॉन मोटाइल हो सकती, बट एम्ब्रियोजेनेसिस में जो भी स्ट्रक्चर बनेगी एम्ब्रियो वो नॉन मोटाइल बनेगी। गैमेटोजेनेसिस में स्ट्रक्चर जो बनती है उनको मूवमेंट करना होगा, बट एम्ब्रियोजेनेसिस में जो स्ट्रक्चर बन रही है वो यूट्रस में बाकायदा रहती है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ वी टेक मोनोसियस और डायोसियस। आप सबने बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल वर्ड सुन रखा होगा। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है मोनोसियस। इफ ए प्लांट बॉडी कंटेन बोथ सेक्स ऑर्गन, यानी एक अगर पादप या एक प्लांट दोनों सेक्स ऑर्गन रखे, मेल और फीमेल, तो उसको बोलते हैं मोनोसियस। और डायोसियस का मतलब इफ द प्लांट बॉडी कंटेन्स आइदर मेल और फीमेल, जैसे मोनोसियस की बात करते हैं। तो बाइसेक्सुअल जस्ट लाइक मैंगो, जस्ट लाइक मैनी जिम्नोस्पर्म, जस्ट लाइक ब्लैकबेरी, जस्ट लाइक कुकुरबिट्स, जस्ट लाइक कारा। और डायोसियस की अगर बात करें तो डायोसियस का मतलब होता है जिसमें एक सेक्स ऑर्गन हो, जैसे बनाना, जैसे पपाया। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस? इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन कंटेन होते हैं, जबकि इसमें केवल एक सेक्स ऑर्गन होता है। एग्जाम्पल, आप जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं मोस्टली मोनोसियस है, मोस्टली, बट यूनिसेक्सुअल प्लांट्स की संख्या कम है। इसके अच्छे एग्जाम्पल याद रखिए कुकुरबिट्स, और इसका अच्छा एग्जाम्पल याद रखिए बनाना एंड पपाया। नाउ वी टेक लाइफ स्पेन। व्हाट इज लाइफ स्पेन? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ टाइम जितने टाइम में पूरा कर ले वो उसका लाइफ स्पेन कहलाता है। लाइफ स्पेन का मतलब होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पेन माना गया है अप्रोक्स 100 ईयर्स। पैरट का जो माना गया है वो है 140 ईयर्स। एलिफेंट का माना गया है अप्रोक्स 90 ईयर्स। बेनियन ट्री का माना गया है 150 से 200 ईयर्स। टोर्टोइज का पाया गया है 200 ईयर्स अप्रोक्स। बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक, और काउ का है अप्रोक्स 15 to 20 ईयर्स। तो लाइफ स्पेन का मतलब समझे। लाइफ स्पेन का मतलब होता है कि एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटेड इट्स लाइफ साइकिल ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो लाइफ स्पेन उसे कहते हैं, ठीक है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पैरट, टॉर्टोइज और बेनियन ट्री। लास्ट, रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम एंड गैमेट। क्रोमोसोम forms after mitosis and gamete forms after meiosis. So chromosome is diploid always and gamete is haploid. For example, human beings contain 46 chromosome but they have 23 gamete. तो gamete नंबर कितना हो गया? 23. क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया? 46. Ophioglossom contain maximum chromosome 1260. Ophioglossom is a type, is an example of fern. 1260 क्रोमोसोम होते हैं उसके पास, और
उसके पास गैमेट हो गए 630। तो व्हाट वी लर्न अबाउट दिस पॉइंट, क्रोमोसोम जब भी आपको दिया जाए तो उसको 2n बनाइए, और गैमेट जब भी दिया जाए उसको n बनाइए। अगर आपको गैमेट दिया गया है और क्रोमोसोम नंबर पूछा जा रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, जबकि क्रोमोसोम देके गैमेट पूछा जा रहा है तो उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड गैमेट। नेक्स्ट क्लास हम बाद में बात करेंगे।